Sachidev sir. 1969 batch. Dr. Usha Sharma ma'am, former professor and head Department of Pediatrics, SMS Medical College Jaipur. Dr. Usha Sharma ma'am. Dr. V.K. Pandey sir. Dr. Ajit R. Singhvi sir. Dr. Ajit R. Singhvi sir, SMS 1973 batch, gastroenterology at Hemet, California. May we have you sir. Dr. Ajit R. Singhvi sir. Thank you so much, sir. Now we have a few of our most special teachers who probably may not be able to come to the stage. So may I request the Honorable Chief Minister and the Health Minister and other dignitaries to please come a few steps and help them out. Dr. Adarsh Bhargav, ma'am. 1965 batch. If you can walk there, sir, please. 1965 batch, Dr. Adarsh Bhargav, ex-senior professor and head of Gynae, SMS Medical College Jaipur, ex-superintendent Zanana Hospital and Mahila Chikitsalaya, former governor nominee board of management RUHS, and recipient of State Merit Award for starting IVF in the government sector in India. Next we have another big name, Dr. Ajit Singh Bafna sir, 1965 batch, one of the favorite teachers of all ENTs out here, former PhD ENT SMS Medical College Jaipur, recipient of State Merit Award, and played a pivotal role in starting cochlear implants in the state of Rajasthan. He is still very active when it comes to policy making of anything in the field of ENT. Dr. Bhagirath Singh Rathod sir, 1967 batch, Lieutenant General and recipient of Ati Vishish Seva Medal in 2011, Vishish Seva Medal in 2007, and former Director General Armed Forces Medical Services. Major General Dr. C.S. Dhawan sir. Dr. C.S. Dhawan sir, Major General, 1954 batch SMS alumni, recipient of War Wounded Medal 1965 War and Ati Vishish Seva Medal. Dr. Gautam Sen sir, tall in stature, tall in height, SMS 1959 batch, former professor and head cardiothoracic unit SMS Medical College Jaipur. He started the open heart surgery at SMS Medical College in 1984. Dr. Hemendra Surana sir, SMS 1966 batch, Hemendra Surana sir, former Ranji Trophy player from Rajasthan and services, that's Army, and founder president of Surana Cricket Academy. Dr. Karan Singh Yadav sir. Dr. Karan Singh Yadav sir, former member of parliament, cardiovascular surgeons, SMS Medical College Jaipur. Dr. M.L. Sharma sir, former professor and head Department of Pathology and Transfusion. Dr. M.R. Jain sir, Dr. M.R. Jain, 1961 batch, director and proprietor Jain Eye Clinic and Hospital Jaipur, and former PhD Ophthalmology, SMS Medical College. He was a state convener of NAMS. Dr. Malti Gupta ma'am, after Dr. M.R. Jain sir, Dr. Malti Gupta ma'am, former professor and head plastic surgery, SMS Medical College Jaipur. Dr. Malti Gupta ma'am. Dr. N.K. Mathur sir, 1961 batch, former professor and head, KNVD, SMS Medical College Jaipur. Dr. N.K. Mathur sir. Dr. Nirmal Sen sir. Dr. Nirmal Sen ma'am, former professor and head, Department of Anesthesiology, SMS Medical College Jaipur.
Dr. P.C. Dandia sir is not here. Dr. R.L. Ajmera sir, 1959 batch, former Principal Government Medical College Kota, former PhD Department of Physiology. Dr. R.L. Ajmera sir. हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब इतने संवेदनशील हैं कि खुद उतरकर हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सागण हैं उनको सम्मानित करने के लिए उनकी कुर्सी तक पहुंचे हैं। Next we have Dr. S.C. Mathur sir, SMS 1961 batch alumni, former professor and head urology, SMS Medical College, and a recipient of P.C. Roy National Award. Dr. S.C. Mathur sir. Dr. S.K. Pathak, former professor and head forensic medicine, SMS Medical College, Jaipur. चिकित्सक महोदय जो ताइवान है उनके सम्मान के साथ ही जन जन तक चिकित्सक को पहुंचाना, चिकित्सा उपकरणों का पहुंचाना और सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की आम जन स्वस्थ रहे। Major General Dr. Tejinder Singh Ahluwalia, former professor and head of ophthalmology, AFMC Pune, and he has been awarded Chief of Army Staff Commendation twice. Dr. Santosh Mukul ma'am, SMS 1950 batch alumni, former superintendent ESI Hospital, and she has also served in the Indian Army. Dr. Rishi Bhargav sir, former professor and head Department of Dermatology, SMS Medical College and Hospital, Jaipur. Now may I request a few of our illustrious alumni to please come on the stage for a group photograph. Dr. Anju Soni ma'am, Dr. Avnish Bhardwaj sir, Anju Soni ma'am, Avnish Bhardwaj sir, Bilal Gupta sir, G.S. Solanki sir, Dr. Ish Munjal sir, Dr. J.K. Mittal sir, Dr. Maya Tandon ma'am, Dr. N.C. Punia sir, Dr. Naresh Somani sir, Dr. Prakash Chandwani, Dr. Pushpendra Garg, Dr. Rajendra Agarwal, Dr. S.P. Sharma, Dr. S.S. Mathur, and Dr. Salil Maheshwari. Dr. V.K. Jain, Dr. Vijay Kapoor, and Dr. Vinod K. Sheth. चलो बाहर चलो भैया इन पेड़ को करो ना बाहर समूह चित्र दिखाने वाले सभी चिकित्सक गणों से अनुरोध है कि कृपया स्टेज के पीछे आ जाएं, कुर्सी को पीछे से साहब आने वाले हैं। बाहर चलें क्या? तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को हमने बढ़ावा दिया। ये सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया और चिरंजीवी योजना एक बेहतर योजना है, इसको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। हम राइट टू हेल्थ बिल भी लाने जा रहे हैं जिससे स्वास्थ्य के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी
ज़्यादा फायदा जो है वो लोगों को पहुंचेगा। सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, सबको आनंद देता हूँ। सर बड़ी बात कही है आपने, राइट टू हेल्थ की तरह राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात कही है आपने। केंद्र सरकार से उम्मीद की इस तरह का बिल लेके आया सर। देखिए, गांधी जी को राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हिंदुस्तान के नागरिक को सोशल सिक्योरिटी चाहिए, जिंदगी आराम से बसर कर सके अंतिम सांस तक आदमी। ये मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए पार्लियामेंट के अंदर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी लेके आई थी उस जमाने के अंदर, आरटीआई लेके आई, मां नरेगा लेके आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, एक के बाद एक कानून बनाए, उसका लाभ पूरे देशवासियों को मिल रहा है आज। उसी ढंग से एक कानून बनना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट का बनना चाहिए। सर आपने अभी तो असेंबली चल रही है। सर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि बेसिकली अधिकांश प्राइवेट अस्पताल ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं। ये जो है ना, ये शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोग समझते नहीं है, चल रहा मामला, परंतु ये कोई कॉमर्शियल काम नहीं है, ये कॉमर्शियल काम नहीं है, ये सेवा के काम है संविधान के अंतर्गत भी। इसीलिए सोसाइटियाँ और ट्रस्ट बना के काम करते हैं, अच्छी बात है। कई लोग अच्छा काम करते, कई प्रबंधकों का तो कोई मिसाल ही नहीं है। उन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया, देश में भी, प्रदेश में भी, दुनिया के अंदर भी। ऐसी संस्थान भी है, देश में भी, प्रदेश के अंदर भी है। उनकी मैं तारीफ भी करता हूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हों, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे कोई संस्थाएं हों, स्कूल हो, कॉलेज हो, होना चाहिए। परंतु ये कमाई का साधन नहीं हो सकता। और उसके बावजूद भी जो आप जिस प्रकार का राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हो, मैं उचित नहीं मानता। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आपकी जो शंकाएं हैं, वाजिब शंकाओं को हम दूर कर देंगे। हम भी नहीं चाहेंगे आप इनसिक्योर फील करो, आप भी सेवा का काम कर रहे हो। हम चाहेंगे आपकी सेवाओं का उपयोग समाज को मिले, सरकार आपके साथ में खड़ी मिलेगी आपको, परंतु अनावश्यक विरोध करना उचित नहीं है, मेरा मानना। सर केंद्रीय मंत्री ने आज बयान आया है, तो उनका है कि मानहानि का दावा पेश कर रहे हैं आपके खिलाफ मानहानि का दावा पेश करने की बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह दिल्ली कोर्ट में आज पेश कर रहे हैं मानहानि का दावा। करने जा रहे हैं या करा दिया है? सर 2 बजे की बात थी, 2 बजे कराने जा रहे हैं सर। तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम ये केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है, यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं, वो खुद मुलजिम हैं, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परंतु वो तो हकीकत है। ये आज तक जबान नहीं खोली इन्होंने। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो, या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। ईडी ही सिर्फ जब्त कर सकती प्रॉपर्टी को, एसओजी नहीं कर सकती है, वरना हम अभी तक जब्त कर लेते प्रॉपर्टियों को, बेच करके कुछ पैसा चुका दे, पूरा पैसा नहीं मिलता। वो कहते थे आप तो हमें आंखों में आंसू आ गए हम सबके, जब वो आए जोधपुर में और जिस प्रकार जयपुर में आए थे, बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग महिलाएं, कुछ सोच नहीं सकता। उनकी सारी कमाई इकट्ठी हुई, बेटियों की शादी करनी गई, लोग क्या क्या किससे बताएं। वो सब लोग बेचारे रो रहे थे। इनको उनमें उनके आंसुओं पे भी शर्म नहीं आती, इनको दया भी नहीं आती। इनको चाहिए वो तो करे, मानहानि का केस अच्छा लगेगा, इसी बहाने केस आगे बढ़ेगा तो गरीबों का इश्यू नेशनल लेवल बनेगा। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी तक बात जाए, अमित शाह जी तक बात जाए। अमित शाह जी खुद कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उनके अंडर में आती है सोसाइटी हैं, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ये, जो ये गबले किए इन्होंने। स्टेट की होती तो हम उस ढंग से निपटते इनसे। ये निपटने का काम केंद्र सरकार का है।
5 बार हम लिख चुके ईडी वालों को, भाई आप कम से कम हमें सब इन्फॉर्मेशन दो, इस केस को लो। ले क्यों नहीं रहे वो लोग? छापे डाले हिंदुस्तान भर में ईडी वाले। ये छापे का केस तो परफेक्ट है। आप केंद्रीय मंत्री ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया क्या ये इतना बड़ा घपला? ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो आप अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में? ये सवाल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो हकीकत है, कागजों में है, पेपरों में है, कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है, लिक्विडेटर बैठा हुआ है, केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठाया हुआ है। ये तो पूरा केस बना हुआ है ना। अब आप बताइए, उसमें इस आदमी को शर्म ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे सबको बुला के बात करूं? हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे इनको, और वो तो आगे नहीं आ रहे हैं। अगर वो चाहें तो हमारी सरकार उनको सहयोग कर सकती है। अगर वो चाहते हैं कुछ किस प्रकार से हम सब मिलके उनका चुकारा करें, मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी। हकीकत तो बताना पड़ेगा, हमारा फर्ज है। वो हमसे पूछते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा बताना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट आपको पूरा सहयोग देगी। आप पैसा दिलवाइए गरीबों को। वो कहते हमारा बिहार गया बाहर के अंदर, आप तो हमारा मूल पैसा दिलवा दीजिए, कम से कम अपनी बेटियों की शादी कर लें। एक आदमी बूढ़े आदमी है, 5 उसे स्टंट लगने हैं, उसे जिद पकड़ रखी है बेटे के साथ, बेटा क्या मैं करवा दूंगा आपका स्टंट लगवा दूंगा। वो कहे नहीं नहीं, मुझे वो पैसा वापस मिलेगा, उसी पैसे से मैं स्टंट लगवाऊंगा। ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं। तो अच्छा है, मैं तो स्वागत करूंगा अगर वो मेरे खिलाफ केस करते हैं, इसी बहाने उन गरीबों का भला होता हो तो मुझे अच्छा लगेगा। सर, स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया है अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फ्रॉड होता है उसके मामले सभी अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उन कोर्ट्स में जाएंगे ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके, कोर्ट्स के जरिए न्याय मिल सके। फर्स्ट टाइम ये प्रोविजन राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग ने भी रिसेंटली दिखवा देंगे, उसको भी दिखवा देंगे। जो भी हो सकता होगा, खाली संजीवनी की बात नहीं है। आदर्श घोटाला है सिरोही का, बड़ा घोटाला वो भी है। जितने घोटालेबाज हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। सर, भाजपा का आज शक्ति प्रदर्शन है, 2 जगह शक्ति प्रदर्शन है। किस तरह देखते हैं शक्ति प्रदर्शन को? एक तरफ तो गांधी मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ युवा मोर्चा का, किस तरह देखते हैं भाजपा के? भाजपा वालों की तो बात छोड़ो, इनके आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो उनको सलामत हो, उनको वो उनके ऊपर है। हम उसमें पंचायती नहीं करना चाहते हैं, उनके घर का मामला है, इसलिए उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। हम तो अपना काम करते हैं। हमने जो बजट पेश किया है, हम जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए हैं, हम महंगाई के अंदर राह देने के लिए, अगर आप रिसर्च करो हमारे बजट की, मीडिया वाले भी जो करते नहीं है, कम करते हैं, कुछ लोग करते हैं, पत्रकार लोग भी, आप तो छोड़िए, आप तो डिस्कशन कर लेंगे, करना भी चाहिए आपको। पत्रकारों को चाहिए रिसर्च करे कि महंगाई के ज़माने के अंदर हमने जो इस बार बजट पेश किया, पिछला बजट भी पेश किया, उसका मर्म यह है कि महंगाई की मार हर परिवार पे कम कैसे हो, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम हो रही है। और आप देखेंगे जो हमारे फैसले लागू होंगे बजट पास होते ही, 1 अप्रैल से ही जब महीना लगेगा आपको 500 रुपये में सिलेंडर, तब मालूम लोगों को एहसास होगा गरीबों को। इससे कहते हैं महंगाई कम करने का प्रयास करना, ये मैं कह सकता हूँ। पेपर लीक के प्रकरणों पे नकेल निकलवाए। मनमोहन भाई बाहर निकाल सकते हैं।